یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہے خبریں. پہلے ہیڈ لائنز. لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر میں عوام کے لیے آج مائی گو نامی ایک چست پلیٹ فارم کا کیا آغاز. کہا کہ اس کی بدولت سرکار اور عوام کے درمیان شراکت داری کے لیے پلیٹ فارم ہوگا میسر. رہناواری سری نگر میں آج حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹ ہلاک. ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 183 کروڑ 82 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگوائے گئے. اور دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد جموں کشمیر میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے کئی اقدامات. خبریں تفصیل کے ساتھ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں عوام کے لیے آج مائی گو نامی ایک چست پلیٹ فارم کا آغاز کیا. یہ اختراعی پلیٹ فارم شہریوں اور سرکار کے درمیان شراکت داری کا ایک پلیٹ فارم ہوگا اور اس کی بدولت شمولیاتی گورننس اور پالیسی سازی کو فروغ ملے گا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس آن لائن پلیٹ فارم کی بدولت جموں کشمیر انتظامیہ عام لوگوں کے نزدیک آئے گی اور عوام کو یو ٹی کی سماجی اور اقتصادی تبدیلی کے لیے مختلف معاملات پر انہیں اپنی رائے، نظریات، خیالات اور تجاویز پیش کرنے کا موقع ملے گا. موصوف نے کہا کہ گورننس ایک دو طرفہ راستہ ہے اور شہریوں کی تجاویز لوگوں کے فائدے کے لیے پالیسی سازی کے لیے اہم ہے. انہوں نے کہا کہ مائی گو پلیٹ فارم سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں تمام تعلق داروں کے خیالات کو شامل کیا جائے. جموں کشمیر مائی گو پلیٹ فارم شروع کرنے کی پہلی یونین ٹیریٹری بن گئی ہے. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے ملازمین سے کہا کہ وہ شہریوں تک زیادہ مؤثر انداز میں رسائی حاصل کریں. بعد میں لیفٹیننٹ گورنر نے یو ٹی ڈیش بورڈ کا بھی آغاز کیا. اس ڈیش بورڈ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں کے ترقیاتی کاموں اور فلیگ شپ اسکیموں میں پیش رفت پر نگاہ رکھی جائے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں عوامی شکایات کو ایل جی ملاقات کے ذریعے فوری طور ازالہ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ذمہ دار گورننس اور سسٹم میں جواب دہی سے JKIGRAMS پر شہریوں کی طرف سے شکایتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے عوام تک رسائی کے تمام اقدامات کیے ہیں اور شکایتوں کے ازالے کی کوششیں کی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایل جی ملاقات پبلک پالیسی، عوامی خدمات کی ڈیلیوری اور عام آدمی کی تعمیراتی شراکت داری اور حوصلہ افزائی میں بہتری لانے میں کلیدی رول ادا کر رہا ہے. ایل جی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنروں، محکموں کے سربراہوں اور انتظامی سیکرٹریوں کا یہ آئینی فرض اور اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی ہر کسی شکایت کا معقول وقت کے اندر سنیں. آج صبح سویرے سری نگر کے رہنواری علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک مڑبیڑ میں لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹ مارے گئے. پولیس نے بتایا ہے کہ دونوں ملیٹنٹ عام لوگوں کے قتل سمیت ملیٹنسی کے کئی حالیہ جرائم میں ملوث تھے. ہتھیار اور گولے بارود سمیت ان کے پاس سے بہت سا قابل اعتراض سامان برآمد ہوا ہے. کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے کہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ کے پاس سے میڈیا کا شناختی کارڈ ملا ہے جو میڈیا کے غلط استعمال کا واضح ثبوت ہے. ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 183 کروڑ 82 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں. صحتیابی کی شرح 98.75% ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1876 مریض روبس صحت ہوئے ہیں. اس طرح مجموعی طور پر 4 کروڑ 24 لاکھ سے زیادہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1233 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے. جموں کشمیر میں آج کووڈ 19 کے 30 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 28 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 2 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 26 متاثرین صحتیاب ہوئے ہیں، جن میں سے 25 کا تعلق کشمیر اور 1 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. یو ٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 146 ہے. بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 21,471 کووڈ مخالف ٹیکے لگوائے گئے. اس طرح سے ایسے ٹیکوں کی مجموعی تعداد اب 2 کروڑ 21 لاکھ 42,824 ہو گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے آج گورنمنٹ وومنس کالج ایم اے روڈ سری نگر کا اچانک دورہ کیا اور کالج میں چالو مختلف تعمیراتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے جہلم توی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر ہو رہے کلاس روم بلاک پر جاری کام کا بھی معائنہ کیا. مشیر نے
चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर को हिदायत दी कि वो मुकर्रर मुद्दत में कामों को मुकम्मल करें ताकि ये इमारत तदरीसी काम के लिए तलबा को वक्फ की जाए। इस मौके पर चीफ इंजीनियर ने मुशीर के सामने इमारत का तफसीली खाका पेश किया और बताया कि ये इमारत कॉलेज के दीगर मीरासी ढांचों के मद्देनजर रखते हुए तामीर की जा रही है। मुशीर मौसूफ ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तामीराती जगह का भी मुआयना किया। उन्होंने काम की रफ्तार में सुस्ती का संजीदा नोटिस लिया और अमल दरामद करने वाली एजेंसी को हिदायत दी कि इस अहम काम में किसी भी तसाहुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानकनी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने आज महकमे से मुतल्लिक कई अमूर पर एक मीटिंग में मुतल्लिका अफसरों के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डायरेक्टर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग, डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग, डायरेक्टर फाइनेंस माइनिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग ने सदर मजलिस को इस तरीकेकार के बारे में बताया जो महकमे ने छोटे मादनियाती ब्लॉकों और कानकनी के लीज जारी करने के हवाले से इख्तियार किया है। उन्हें बताया गया कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नीलाम करदा 365 छोटे मादनियाती ब्लॉकों में से 175 ब्लॉकों के हक में एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी गई है। मीटिंग में बताया गया कि 20 मामलात में इस क्लियरेंस की मंजूरी दी गई और 19 मामले ज़ेरे गौर हैं। मीटिंग में मजीद बताया गया कि सिडको ने तमाम 111 हाईटेक मादनियाती चेक पोस्टों के बारे में एक यकसान तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें से 50 जम्मू और 61 कश्मीर में तामीर किए जाएंगे। हुकूमत जम्मू कश्मीर में मयारी तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात फराहम करने की अहदबंद है। इस बात का इजहार सेहत और तिब्बी तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने आज जम्मू में डेंटल कॉलेजों के लिए 2 रोजा NABH डेंटल स्टैंडर्ड वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के दौरान किया। उन्होंने हेल्थ केयर वर्करों से कहा कि वो निजकारों की तरफ से सख्त मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों को प्राइवेट अस्पतालों में मैसर खिदमात का हम पल्ला बनने के लिए अपनी खिदमात को बढ़ाना चाहिए ताकि यूटी में वो तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बड़े फराहमकार होने का तुर्रे इम्तियाज बरकरार रखे। उन्होंने दांतों की निगहदाश्त से मुतल्लिक खिदमात की मयारी मैनेजमेंट को मुतारिफ करने पर भी जोर दिया। समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने आज कबायली अमूर महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा इस दाखिली शिकायती कमेटी की पहली मीटिंग तलब की जो मुख्तलिफ महकमों में दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन के रोजगार और सर्विस से मुतल्लिक शिकायत के हवाले से मामलात को देखेगी। कमेटी ने मीटिंग में ट्राइबल मुलाजमीन की उन शिकायत से निपटने के लिए तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जो रिजर्वेशन रोस्टर पर अमल न करने, मखसूस खाली आसामियों को पुर न करने, तरक्की, सीनियरिटी, MACP, ACP और कई दीगर मामलात से मुतल्लिक थे। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कमेटी की तरफ से ST मुलाजमों की शिकायत के अमूर से निपटने के लिए एक साफ और शफाफ मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सर्विस या मुलाजमत के मामलात से मुतल्लिक तमाम शिकायत की खातिर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पर भी ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग में फैसला किया गया कि कमेटी अमूरात पर माहवार मीटिंग हर माह की 26 तारीख को किया करेगी और तहती कमेटी दाखिली शिकायत से मुतल्लिक कमेटी के लिए तमाम अर्जदाश्तों की छानबीन करेगी। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने मीटिंग में शिकायत हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के तौर तरीकों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सरकार ने दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कई इकदामात किए हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में तालीम के वजीर मुमलिकत अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि J&K स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कायम की गई है और 835 वोकेशनल लैब्स कायम की गई हैं जो वोकेशनल तालीम फराहम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा पोर्टल शुरू किया है जो शहरियों को अपनी हमसायगी में किसी भी मुजरिमाना, गैर कानूनी या मुश्तबह सरगर्मियों के बारे में पुलिस को मुतला करने का मौका फराहम करेगा। ये पोर्टल जम्मू कश्मीर में जराइम की रोकथाम और अमन और सलामती को मजबूत बनाने के तई एक कलीदी कदम है।
इस पोर्टल पर cid.jk.gov.in पर रसाई हासिल की जा सकती है। इस पोर्टल पर शहरी खुफिया तौर भी मालूमात फराहम कर सकते हैं। CID किसी भी शख्स को बिलवास्ता या बिलावास्ता धमकी देने या डराने की हर कोशिश को रिकॉर्ड कर रही है। शहरियों से कहा गया है कि वो उन्हें दी जाने वाली किसी भी धमकी के बारे में CID को मुतला करें, जिनमें टेलीफोन कॉल की तारीख, वक्त और टेलीफोन नंबर नीज दीगर अहम तफसीलात शामिल हों। तुर्की का कहना है कि यूक्रेन और रूसी वफूद ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने के बाद मशावरत के लिए अपने मुल्क जाने का फैसला किया है। कल तुर्की की मेजबानी में मुज़ाकरात में एक ऐसा खाका खींचा गया कि जंग को खत्म करने के लिए दायरे कार क्या हो सकता है। ये मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होने वाले थे, लेकिन तुर्की के खारजा वजीर ने कहा कि दोनों तरफैन अपने ममालिक तजावीज़ लेने के हामी थे। दरियासना रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक फौजी कार्रवाई कम करने का फैसला किया, लेकिन कहा कि ये कोई जंगबंदी नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़े तौर पर कहा है कि खलीज बंगाल को सिक्योरिटी, खुशहाली और राब्ते का पुल बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इलाकाई ताउन एक बड़ी तरजीह बन गई है। उन्होंने वर्चुअल तरीके पर बिम्स्टेक सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि यूरोप के हालिया वाक़यात ने बैनुल-अक़वामी सरहद के इस्तेहकाम के बारे में सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक इलाकाई ताउन को और ज्यादा सरगर्म करने की अहमियत बढ़ गई है। वजीर आजम ने कहा कि बिम्स्टेक के क़याम को 25 साल पूरे हो गए हैं और इस छोटी मीटिंग के नताइज को बिम्स्टेक की तवारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। वजीर आजम ने हर एक उमंग को पूरा करने की गर्ज से बिम्स्टेक के सेक्रेटरीट की सलाहियत को बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने कहा कि सेक्रेटरीट की जिम्मेदारियों और कामकाज को बढ़ाने के लिए भारत $10 लाख की माली इमदाद देगा। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के आजादाना तजारती समझौते की तजवीज पर जल्द पेशरफ्त की जरूरत है ताकि तजारत में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि तजारत में सहूलत की खातिर बैनुल-अक़वामी ज़ाबितों पर अमल किया जाना चाहिए। साबिक वजीर गुलाम कादिर मीर के इंतकाल पर कई लीडरों ने रंजो गम का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहूम के जुमला सोगवारान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है। इधर श्रीनगर में PDP के हेडक्वार्टर पर पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुल रहमान वीरी की सदारत में एक ताज़ियती इजलास हुआ, जिसमें मरहूम गुलाम कादिर मीर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।